لیے ہم دو چند منٹ کے لیے اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے، اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے اور میرے ساتھ مل کر دیکھیے گا اس کا پہلا باب اور اس کی 6 آیت سے لے کر 9 آیت تک میں آپ لوگوں کے لیے تلاوت کروں گا۔ تیتس کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 6 آیت۔ میں چاہوں گا جن کے پاس بائبل مقدس ہے وہ ضرور بائبل کھولیں اور ایک بیوی کے شوہر ہو اور ان کے بچے ایماندار اور بد چلنی اور سرکشی کے الزام سے پاک ہو، کیونکہ نگہبان کو خدا کا مختار ہونے کی وجہ سے بے الزام ہونا چاہیے، نہ خودداری ہو، نہ غصہ آور، نہ نشہ میں غل مچانے والا، نہ مار پیٹ کرنے والا اور نہ ناجائز نفع کا لالچی، پاک اور ضبط کرنے والا ہو اور ایمان کے کلام پر جو اس تعلیم کے موافق ہے قائم ہو، تاکہ صحیح تعلیم کے ساتھ نصیحت بھی کر سکے اور مخالفوں کو قائل بھی کر سکے۔ کلام خدا کا پڑھا، سنا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ فاؤنڈیشن کیسے رکھی جاتی ہے؟ کلام کے حصہ کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتانا چاہے کہ جو چرچ آف پینتیکوسٹ کے مشن ڈائریکٹر ہیں پادری متی کرامت صاحب، جن کا تعلق شیخو پورا سے ہے، اور آج کی اس آرڈینیشن سیرمنی کے اندر انہوں نے آنا تھا اور کلام خدا کی خدمت کو بھی سر انجام دینا تھا، اور ہمارے ہم خدمت بھائی پاسٹر مقصود کو ایز اے پاسٹر جو ہے وہ ordain کرنا تھا، لیکن ان کی کوئی قریبی بیٹی جو جوان ہے اس کے سر میں فائر لگا اور اس کی وجہ سے وہ پاسبان ہونے کے ناطے اور رشتہ دار ہونے کے ناطے یہاں پر نہیں آ سکے، لیکن چرچ آف پینتیکوسٹ کے پلیٹ فارم سے پنڈی اسلام آباد کا ہیڈ ہوتا ہوا میں آج پاسٹر مقصود کو چرچ آف پینتیکوسٹ ڈاکٹر جمیل ناصر اور متی کرامت اور نیشنل سیکٹری جناب عقیل ناصر کے بہاف پر اپنے ہم خدمت بھائی کو یہاں پر آپ سب کی نظروں کے سامنے چرچ آف پینتیکوسٹ کے پلیٹ فارم پر جو ہے وہ ہم پاسٹر ordain کریں گے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اب ہم کلام کے حصہ کی طرف بڑھیں گے کہ جو تیتس کے خط کے اندر سے آپ کے لیے کلام خدا کا حصہ تلاوت کیا گیا، اور آپ لوگوں نے اس حصے کو اگر غور سے سماعت فرمایا ہے اور اگر غور سے سنا ہے تو آج اس پیسیج کے اندر سے ہم 2 چند باتوں کو سیکھیں گے۔ پہلی بات مختصراً ہم سیکھیں گے کہ مخصوصیت کیا ہے اور مخصوصیت کا تصور کہاں سے وجود میں آیا۔ دوسری بات جو ہم سیکھیں گے وہ یہ سیکھیں گے کہ خادم جو ہے وہ کیا ہے، بائبلی خادم کسے کہتے ہیں، اور بائبل مقدس کے اندر خادم کی تعریف کیا بیان کی گئی ہے۔ اور تیسری بات جو ہم آج سیکھیں گے وہ خادم کی کلیسیا کے اندر ذمہ داریاں سیکھیں گے۔ اب ان تینوں باتوں کو ہم ترتیب سے سیکھیں گے۔ سب سے پہلا یہ کہ یہ جو تیتس کا خط آپ کے سامنے پڑھا گیا، یہ خط پاسبانی خدمت کو سمجھنے کے لیے بڑا ضروری ہے، اور اس کے اندر وہ تمام شرائط، تموتھیوس کا خط، اس کا دوسرا خط اور پھر تیتس کا خط، اس کے اندر ایک اچھے پاسبان کی ذمہ داریوں کو بیان کیا گیا اور طریقہ بتایا گیا۔ اگر کوئی پاسبان کی خدمت چاہتا ہے، اگر کوئی خادم کی خدمت چاہتا ہے
तो उसके अंदर ये लवाजमात होने चाहिए। हम कोई चीज बनाते हैं, घर के अंदर कुकिंग करते हैं, तो उसमें हमें हर डिश के अंदर मुख्तलिफ किस्म के इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की चीजें डालनी पड़ती हैं, फिर जाकर वो एक चीज बनती है। और अगर बाइबल का हकीकी खादिम बनना है तो फिर ये मौजूद सारी वो बातें जिनका जिक्र आपके सामने किया गया है, उनका एक ईमानदार मसीही के अंदर होना जरूरी है। और अगर ये सब बातें उसके अंदर हैं तो इसका मतलब है कि वो एक अच्छा बाइबली खादिम बन सकता है। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहली बात, जो बेइल्जाम और एक एक बीवी के शौहर हो, कितनी बीवियां दे, एक एक बीवी के शौहर हो और उनके बच्चे ईमानदार हो, की होण ईमानदार हो और बद चलनी से और सरकशी के इल्जाम से पाक हो। यानी उनके खादिम के साथ साथ उनके बच्चों का किरदार भी ठीक होना चाहिए। अगर आप खिदमत के अंदर हैं और अगर आप बाइबली खादिम हैं तो फिर सिर्फ खिदमत आप तक रुकती नहीं है, बल्कि आपकी खिदमत का असर आपके बच्चों के अंदर ट्रांसफर होना चाहिए, ताकि आपकी औलाद जो है वो भी ईमानदार हो, बदचलनी से पाक हो, गुनाह से मुबर्रा हो। ऐसा खादिम अपनी आने वाली नस्लों के लिए भी बरकत का बायस बनता है। ये बाइबली खादिम की पहचान है। और फिर अच्छा, मैं चाहूंगा जरा भैना ना न्याणिया तो तवज्जो हटा के जरा चंद मिनट सिर्फ इधर वेखण गिया ते सौण वाले उठ जान, सौण वाले उठ जान। और फिर लिखा है निगहबान को खुदा का मुख्तार होने की वजह से बेइल्जाम होना चाहिए, ना खुददारी हो, हाँ मैं नहीं होनी चाहिए, ना गुस्सावर हो, एकदम जलाल च आने वाला खादम नहीं होना चाहिए। कौन कहती है? बाइबल कहती है। ना नशा में खुल मचाने वाला, ऐसे बेशुमार पादरी हैं जिनको मैं जानता हूं, घर च सूटा ला के ते बुढ़ी नूं कुटदे ने, लेकिन गिरजे ते पुलपट दे उत्ते की हुंदे ने? खादम हुंदे ने। लेकिन बाइबल कहती है ऐसा शख्स धोखेबाज तो जरूर हो सकता है, डिसीवर तो जरूर हो सकता है, लेकिन वो हकीकी बाइबली खादिम नहीं हो सकता। इसलिए एक खादिम होने के लिए उसे इस सारे नशे की लानत से क्या होना चाहिए? पाक होना चाहिए। ना मारपीट करने वाला, ना नाजायज नफा का लालची हो, नाजायज नफे का लालच भी ਉਹਦੇ अंदर, यानी नाजायज हर चीज ਨੂੰ अपना बनाने का लालच ਉਹਦੇ अंदर होना नहीं चाहिए। ये बाइबली खादिम की पहचान है। और अगर ऐसी कोई भी बीमारी किसी खादिम के अंदर पाई जाती है तो समझिए कि वो बाइबली खादिम नहीं है। वो मैं हूं, वो कोई और है, वो कोई भी है। तो समझ जाएं कलीसिया की नसीहत और तरक्की के लिए कि वो बाइबली खादिम नहीं है, बल्कि हिजकियल फरमाता है कि वो अपने अपने पेट के खादिम हैं। और इसके अलावा अगर ये नहीं होना चाहिए तो फिर कैसा होना चाहिए? लिखा बल्कि मुसाफिर परवर हो, खैर दोस्त हो, मंतकी हो और मुनसब मिजाज हो, परहेजगार हो, अच्छा मिजाज दा मालक होवे जिदे वजह तो वो कोई 10 लोगों का चंगा फैसला कर सके, मुनसब मिजाज हो, इंसाफ करने वाला उसका मिजाज हो, ना कि ऐसा। एक मौलवी साहब को आए, कहते मौलवी साहब इन्हें गुनाह किया है, की जुर्माना है? कहते ने कि हल नूं सीधा खड़ा कर दो ते ओदे बराबर रोटियां ला दो ते ओ जिहड़े ना सारे इलाके च वंड दो। अगों एक बंदे ने आख्या मौलवी साहब वो तुहाडा मुंडा भी नाल च, उन्हें कहा हल नूं लम्मे पा दिओ ते ओदे बराबर रोटियां ला दो।
تو اپنی دفعہ جو ہے انصاف کا پیمانہ اور دوسرے کی دفعہ جو ہے وہ انصاف کا پیمانہ اور. لیکن بائبل یہ کہتی ہے خادم کے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ اس کا اپنا ہو یا غیر ہو، انصاف کا پیمانہ ایک جیسا ہونا چاہیے. ہاللیلویا. یہ کوالٹی، یہ خصلت، یہ خوبی ایک خادم کے اندر ہونی چاہیے. اور اگر خادم انصاف میں یکساں نہیں ہے تو وہ بائبلی خادم نہیں ہے. ہاللیلویا. پھر کیا لکھا ہے؟ پاک اور ضبط کرنے والا ہو. کی ہوئے؟ پاک تے ضبط کرنے والا. ضبط کرنے کے لیے انگلش کے اندر ایک لفظ آیا ہے سیلف کنٹرول، یعنی اس کا اپنے اوپر کنٹرول ہو. بعض اوقات لوگ ایماندار بلیورز، چوزن پیپل کیا کرتے ہیں کہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں پادری تے میں ہے وہاں لیکن ہوڑ میں آوی ہوں. وہ کیا کرتے ہیں؟ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. لیکن بائبل کیا کہتی ہے؟ وہ ضبط کرنے والا ہو، سیلف کنٹرول. اور بزرگ پولس یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے جسم کو مارتا اور کوٹتا ہوں تاکہ اس کو قابو میں رکھوں. اور مارنے اور کوٹنے کے لیے جو انگلش کے اندر لفظ آیا ہے اس کا مطلب ہے سیلف کنٹرول. پولس کہتا ہے میں اپنے جسم کو مارتا اور کوٹتا ہوں، یعنی میں اپنے جسم کو سیلف کنٹرول کرتا ہوں، اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہوں. خادم ہونے کے ناطے ہمیں اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ بہت ساری باتوں میں کنٹرول رکھنا ہے. اور جو شخص اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتا وہ بائبلی خادم نہیں ہو سکتا. ہاللیلویا. اب یہ تو تیتس کے خط کے اندر سے کچھ چیدہ باتیں، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ آج چونکہ مخصوصیت ہے اور مخصوصیت کا ایک مطلب ہے کسی کو کسی کے اندر سے نکال لینا. مخصوصیت ہے ایک مطلب کی یہ پہنو کسی چیز کو، کسی شخص کو کسی کے اندر سے علیحدہ کر لینا. آپ 10 لوگ ہیں اور میں ایک کو سیپریٹ کرتا ہوں اور اس کو ordain کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے میں نے اتنے سارے لوگوں میں سے اس کے اندر یہ کوالٹی دیکھی اور میں نے اسے پکڑا اور خداوند کے دیے ہوئے اختیار سے اسے ordain کر دیا، اسے مخصوص کر دیا. یہ ہے مخصوصیت. اور جب خدا مخصوص کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے خداوند اس شخص کے اندر اس کوالٹی کو دیکھتا ہے اور اس شخص کو پکڑتا ہے اور اپنی خدمت کے لیے مخصوص کر دیتا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. یہ جو مخصوصیت کا تصور ہے یہ دین یہودیت سے لیا گیا ہے، جوڈائزم سے اس کو اخذ کیا گیا ہے، وہاں سے اس کا اثر لیا گیا ہے. اور رسولوں کے بعد یہ درجہ بدرجہ بڑھتا گیا اور آج کی صدی کے اندر مخصوصیت کا تصور اور بھی زیادہ بڑے طریقے سے جو ہے وہ ابھر کر سامنے آ گیا. اور اعمال کی کتاب اس کے 6 باب کے اندر 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو لایا گیا اور لکھا ہے ان کو رسولوں کے سامنے لا کر کھڑا کیا گیا اور رسولوں نے ان پر ہاتھ رکھے اور ان کو مخصوص کیا اور ان کے سبب سے کلام پھیلتا گیا. یعنی جن کو آپ ordain کر رہے ہیں، جن کو آپ مخصوص کر رہے ہیں، اگر ان کے سبب سے کلام نہیں پھیلتا تو اس کا مطلب ہے آپ کا ordain کیا جانا بے فائدہ ہے. آپ کے مخصوص ہونے سے کلام کیا ہونا چاہیے؟ پھیلنا چاہیے. آج پاسوان کی آرڈینیشن، ڈیکنز کی آرڈینیشن، ایلڈرز کی آرڈینیشن، ایونجلسٹ یعنی مبشر کی آرڈینیشن اور دیگر کلیسیائی انتظام کے اندر اور لوگوں کی بھی آرڈینیشن کی جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سب کے لیے خداوند کا کلام ہے. اور میری ایک بات سنیے گا،
खादम दा मतलब ये नहीं कि मैं पादरी हाँ, पादरी मखसूस साहब पादरी ने, पादरी एहसान साहब पादरी ने और दूसरे पादरी ने। खादम का बाइबल के अंदर यूनानी मतन के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, खादिम के लिए डायाकुनिया इस्तेमाल हुआ है। और डायाकुनिया का मतलब है जो नौकर होता है, और ऐसा नौकर जो हाथ बांधकर खड़ा रहता है और मालिक की बात पर सिर्फ और सिर्फ हाँ कहता है। जिवें कहते ने ना फौज दे विच ना नहीं है, सिर्फ हाँ है। ऐसा खादिम डायाकुनिया, डायाकुनोस, खादम के लिए जो असल इब्रानी और यूनानी के अंदर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, उसका मतलब है नौकर। ऐसा नौकर जो हाथ बांध कर खड़ा है और बादशाह मालिक यीशु के हुक्म का मोहताज है, और जैसा मसीह उसको हुक्म देता है वैसा ही वो उसके हुक्म को बजा लाकर कलीसिया के अंदर खिदमत करता है। फिर खादम जेड़ा है वो सारे दे सारे हो सकते हैं, लेकिन कुछ को मखसूस किया जाता है। ये है खादम। और खादम नाम है सफर का, खादम नाम है रहनुमा का। जैसे अच्छा इधर देखो, जैसे खादम को ऑर्डेन किया जाता है तो फिर क्या होता है, वो सफर में चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि अब उसने अंजील के पैगाम को आम करना है, और यही उसकी जिम्मेदारी है। इसलिए खादम का एक मतलब सफर का नामा है, सफर करना है। तो इसलिए अक्सर आलिम जो हैं वो खादम के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि खादिम सफर है, यानी वो चलता रहता है अंजील की मुनादी के लिए। इसलिए तो कहते हैं खड़ा पानी और खड़ा इंसान दोनों बदबू मार जाते हैं। इसलिए पानी का चलते रहना और खादिम का सफर में रहना बड़ा जरूरी है, ताकि उसके वसीला से कलाम की खुशबू दूसरे लोगों तक पहुंचे। हालेलुया, हालेलुया। सो आज हम इस बात को सीखेंगे कि खादिम के लफ्जी मतलब को हमने देखा, डायाकुनिया, डायाकुनोस यानी नौकर, और ऐसा नौकर जो हाँ में जुबान हिलाता है। और जब कोई खादिम है तो इसका मतलब है वो मसीह का नौकर है। और पौलुस तो कहता है मैं मसीह का नौकर हूं, और जैसी बात मुझ तक पहुंची मैंने तुम तक मनोअन वैसी ही पहुंचाई कि मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक मुआ और दफन हुआ और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये खादम की असली पहचान है। हालेलुया। वो कहता जैसी मुझ तक पहुंची ते खादम दी असली जुबान की है, जिवें दी गल ओनू मसीह तो पहुंचदी है, जिवें दी गल ओनू यहवे तो पहुंचदी है, उवें दी गल अगे ट्रांसफर करता है। हालेलुया। और तीन किस्म के खादिम होते हैं। कितने किस्म दे? तीन किस्म के खादिम। एक सेल्फ मेड, एक गॉड मेड और एक पीपल मेड। एक ऐसा खादम जड़ा आप भी पादरी बन जाता है। हाँ, सुबह पता लगा तो बैनर लग गया वो बिशप बन गया। हाँ, सुबह बैनर लगा पता लगा वो पादरी बन गया। और मैनू रात ख्वाब आया सी, मैनू यसु मसीह ने ख्वाब च आके आख्या तू पादरी है, पता लगा वो की बन गया, पादरी बन गया। लेकिन वो सेल्फ मेड है। और दूसरा किस्म का खादिम जो है वो पीपल मेड है। जरा गिरजे च दुआ करनी आती है, जरा थोड़ा जा कलाम सुनाना आंदा है, हाँ थोड़ा जा पढ़िया लिखिया, थोड़ी जी अंग्रेजी भी जानता है, कुछ हिब्रियो ते कुछ लैटिन दे लफ्ज भी जानता है, चंगा बोल लेंदा है, चंगा गा लेंदा है। और लोग दो चार रल के कहते ने छाटे दे पीछे की लगा, इस पादरी नूं ते कुछ भी नहीं आउंदा, इंज कर तू अपना गिरजा बना असीं तेरी कलीसिया बनांगे। ओ फड़ के उस बंदे नूं पादरी बना देंदे ने, जबकि ओदे अंदर ए एबिलिटी नहीं होंदी। ऐसे लोग जो हैं उसके लिए ये कहा जाता है कि वो पीपल मेड पादरी हैं। वो पादरी जड़े ने वो लोग बनाते ने। हाँ? और तीसरी किस्म का जो पादरी है वो होता है गॉड मेड।
यानी जिन्नू खुदा बनाता है। हालेलुया हालेलुया। जिन्नू खुदा बनाता है असल पादरी वो हुंदा है। और सिर्फ 5 से 7 मिनट हम इस पादरी पर गौर करेंगे कि जिनको खुदा बनाता है वो पादरी किवें दा हुंदा है। और बुजुर्ग पौलुस इस बात को बड़े खूबसूरत अंदाज में कहते हैं, सुनिएगा। गॉड मेड के ऊपर बात करेंगे, सेल्फ मेड पर नहीं। बाइबल मुकद्दस के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे सूरमा हैं जिनको लोगों ने बादशाह बनाया, जो खुद बादशाह बन गए, लेकिन वो ज्यादा देर कायम नहीं रहे। लेकिन जिनको खुदा ने बनाया उनका नाम आज भी कायम और दायम है। इसलिए खादिम गॉड मेड होना चाहिए ताकि उसके सबब से कलाम की खुशबू हमेशा कायम रहे और उसकी वो बात जो उसने कही कि घास सूख जाएगी, फूल को मिला जाएगा, मगर खुदा का कलाम अब तक कायम रहेगा। ते किदे वसीले ना कायम रहेगा? जिन्नू खुदा बनाएगा। हालेलुया। सो बुजुर्ग पौलुस जिसको खुदा खुद खादिम बनाता है, ਉਹਦੇ बारे लिखा है गलतियों पहले बाब की पहली आयत कि पौलुस की तरफ से। जरा गौर न सुने, पौलुस ऐसा खादिम है जिन्हें खुदा ने बनाया। सुनिएगा, और ये फॉरएवर है, इटर्नल है, ये वक्ती नहीं है, ये हमेशा लिए। पौलुस की तरफ से जो ना इंसानों की जानब से ना इंसान के सबब से, हाँ जी, ना इंसानों की जानब से ना इंसान के सबब से, बल्कि यीशु मसीह और खुदा बाप के सबब से जिसने उसको मुर्दों में से जलाया रसूल है। हालेलुया। इन्हों किन्ने रसूल बनाया? किन्ने? हाँ जी, यीशु मसीह और बाप ने उसके सबब से एक ही बढ़िया रसूल। लोगों के कहते नहीं बन गया, आप ही नहीं बन गया, बल्कि ये गॉड मेड, हाँ ये गॉड मेड है। पौलुस गॉड मेड है। और जो गॉड मेड होता है, जिसको खुदा खादिम बनाता है, उसके अंदर कुछ क्वालिटी नजर आती है। और अगर उसके अंदर वो क्वालिटीज नहीं है तो समझ जाओ कि उन्हें खुदा ने खादिम नहीं बनाया। ये कलाम मेरे लिए भी होना ही है। ये नहीं कि मैं इतने जनाब सुना दिया ते थले जड़ा ना वो घर जाके ते किसी ने ठुड्डे पैन दे ते किसी ने मुक्के पैन दे। हाँ, घर में गाली गलोच हो रहा है, मेरे आस्ते भी होना ते तुम्हारे आस्ते भी होना। हालेलुया। जो गॉड मेड होता है, जो खुदा ने बनाया होता है, उसके अंदर कुछ क्वालिटीज होती हैं। गलतियों 5 बाब उसकी 22 आयत, गलतियों 5 बाब और उसकी 22 आयत में लिखा है। सुनिएगा, और मैं चाहूंगा बड़े गौर से सुनिएगा। बाइबली खादम दे विच की होना चाहिए? अगर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक चीज़ां होणगियां जो कि एक गॉड मेड भी है और एक बाइबल का अच्छा हकीकी सही खादम भी है। सुनियो, गलतियों 5 बाब की 22 आयत लिखा है। हाँ जी बाजी इधर मेरे हुण मैं ना लांगा, मैं बहुत जानना है इत्थे। सो इसलिए सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकते रहो। हाँ सुनिएगा, 5 बाब और 22 आयत में लिखा है, मगर रूह का फल मोहब्बत, दूसरा खुशी, एतमानान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिलम, परहेजगारी है। अगर कोई खुदा का हकीकी खादिम है, अगर उसको खुदा ने अपने वास्ते चुना है, तो ये 9 फल उसकी जिंदगी से जाहिर होने चाहिए। और अगर नहीं होंगे ना तो फिर समझ जाओ। हाँ सुनिएगा, मगर रूह का फल मोहब्बत, ये 9 फल है और इनके 3 सेट बना ले। पहले 3 फल, मिडल वाले 3 फल, दरमियान वाले और आखिरी 3 फल। पहले 3 फल के हैं, मगर रूह का फल मोहब्बत,
خوشی اور اطمینان. اور یہ تینوں پھل صرف اس صورت میں پیدا ہوتے ہیں جب آپ کا تعلق خدا کے ساتھ صحیح ہوتا ہے. کیونکہ لکھا ہے خدا ہی حقیقی اطمینان کا سرچشمہ ہے, خدا ہی محبت ہے, خدا ہی حقیقی اور دائمی خوشی ہے. جب آپ کا تعلق خدا کے ساتھ صحیح ہوگا تو اس کا مطلب ہے آپ کے اندر یہ تین پھل موجود ہوں گے. جب آپ کو خدا بنائے گا تو خدا آپ کو ان تین خوبیوں سے بھی نوازے گا. اور اگلے تین پھل کے ہیں تحمل, مہربانی اور نیکی. اور ان تین پھلوں کا تعلق جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ ہے. میں پادری ہوں, پہلے تین پھل میرے اندر ادو ہی پیدا ہون گے جدوں میرا تعلق خدا دے نال صحیح ہوئے گا. تحمل, مہربانی اور نیکی, یہ تین پھل جو ہیں ان کا تعلق آپ لوگوں کے ساتھ ہے. کہ اگر میں گاڈ میڈ ہوں اور اگر میں خدا کا حقیقی خادم ہوں تو پھر میرے تعلق جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ مہربانی کا ہوگا, میرا تعلق لوگوں کے ساتھ نیکی کا ہوگا, میرا تعلق لوگوں کے ساتھ تحمل سا ہوگا. اس لیے جب یہ 6 پھل زندگی میں آتے ہیں تو پہلے 3 پھل اس بات کا اظہار ہے کہ آپ کا تعلق خدا کے ساتھ ٹھیک ہے. دوسرے 3 پھلوں کا مطلب ہے آپ کا تعلق لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہے. اور جو آخری 3 پھل ہیں علم, ایمانداری اور پرہیزگاری, ان 3 پھلوں کا تعلق خود انسان کی ذات کے ساتھ ہے. باجی میرے بل, ان 3 پھلوں کا تعلق خود انسان کی ذات کے ساتھ ہے. علم, پرہیزگاری اور ایمانداری. یعنی میں اپنے آپ کے ساتھ ایماندار ہوں, مخلص ہوں, میں پرہیزگار ہوں, میں حلیم مزاج ہوں. یعنی ایک بائبلی خادم کا تعلق بھی خدا کے ساتھ صحیح ہونا چاہیے, لوگوں کے ساتھ بھی تعلق صحیح ہونا چاہیے, اور خود اس کا تعلق اپنی ذات کے ساتھ بھی صحیح ہونا چاہیے. جب کسی شخص کے اندر یہ تینوں باتیں پائی جائیں گی تو سمجھ جائیے گا کہ وہ گاڈ میڈ ہے, وہ بائبل کا حقیقی رہنما ہے, وہ خدا کا حقیقی خادم ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. سو ایماندار مسیحی, ہمیں کیا بننا ہے؟ گاڈ میڈ بننا ہے. پہچاننے کا کرائیٹیریا میں نے آپ کو بتا دیا. ہاللیلویا. اب آخری بات, وہ خدام کی ذمہ داریاں ہیں. ہم نے سیکھا کہ خادم کا مطلب کیا ہے, نوکر. ہم نے سیکھا کہ مخصوصیت کا تصور کہاں سے آیا, مختصر میں. پھر ہم نے سیکھا کہ بائبل کے علاوہ اور کتنے قسم کے خادم ہیں. غلطیوں کے خط میں لکھا گناہ کا خادم بھی ہے. ایک ایماندار خادم ہے, دوسرا گناہ کا خادم ہی ہے. گا بھیڑ کے روپ میں بھیڑیا بھی ہے. کیا لکھا ہے سنیے گا. اب خادم کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ خادم کی ذمہ داریاں, ہاں جنہاں میں جو ڈین ہونا ہے, جنہاں نے خدا نے چنے ہیں, انہاں یہ ذمہ داریاں کی ہے. خادم ہونے کے ناطے میری اور آپ کی سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ کلیسیا کو ایکسرسائز کروانا. کی کرانا؟ ایکسرسائز کوئی دسے گا کیوں کری دیئے؟ ہاں جی, کنو سیٹ رکھا لی؟ صحت نو سیٹ رکھا لی. اور پولوس رسول کے اندر پہلا تموتھیس بزرگ پولوس کے اندر پہلے تموتھیس سے خط جے انہیں 4 باب جے سنیں. کلیسیا میں خادم کا کام, ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کلیسیا کو کیا کروائے؟ ایکسرسائز کروائے. ہاں, ایکسرسائز کروائے. اور ایکسرسائز سے کیا ہوتا ہے؟ ہم ذہنی طور پر, ہم جسمانی طور پر کیا رہتے ہیں؟ مضبوط رہتے ہیں. اس لیے لوگ جم جاندے ہیں نا, ذرا باڈی شاڈی بن جائے. لوگ صبح واک کرتے ہیں تاکہ بلڈ پریشر زیادہ نہ ہو. ہاں, لوگ جم لگاتے ہیں اپنے جسم کو صحیح اور توانا رکھنے کے لیے. وہ کیا کرتے ہیں؟ ایکسرسائز کرتے ہیں. اور بزرگ پول جو ہے وہ تموتھیس کے سبب سے
पहला तीमुथियुस 4 बाब और उसकी 8वीं आयत में यूं फरमाता है, सुनिएगा। लिखा है पहला तीमुथियुस उसका 4 बाब और उसकी 8वीं आयत, क्योंकि जिस्मानी रियाजत का फायदा कम है। और रियाजत आस्ते मैं वेखण ऐसा इंग्लिश दे विच लफ्ज़ एक्सरसाइज, हालेलुया हालेलुया। जब मैं इंग्लिश वर्जन को चेक कर रहा था तो उसके अंदर है एक्सरसाइज, प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस का मतलब है मश्क, और मश्क का मतलब है करते रहना। वो क्या कहता है 8वीं आयत के अंदर, क्योंकि जिस्मानी रियाजत का फायदा कम है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, लेकिन अगर रूहानी रियाजत नहीं करते तो रूह मरदा हो जाती है। तो बाइबल कहती है ਉਹਦੇ को ना डरो ਜਿਹੜਾ जिस्म ਨੂੰ ਹਲਾਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ को डरो ਜਿਹੜਾ रूह ਨੂੰ भी मार देता है। हालेलुया। आगे क्या कहता है? वो कहता है लेकिन दीनदारी सब बातों के लिए फायदेमंद है, इसलिए कि अब की और आइंदा की जिंदगी का वादा भी उसी के लिए है। हालेलुया। सानू की करना है? पासबान होने दे नाते, ईमानदार होने दे नाते कलीसिया नू की करवानी है? एक्सरसाइज, यानी रूहानी। बुजुर्ग पौल कहता है दीनदारी की रियाजत, यानी उन्होंने कलाम सिखाना है, कलाम दे सबब ना उन्हां दी नशोनुमा नरिशमेंट करनी है, उन्हां दी परवरिश करनी है। ते अगर असी रूहानी एतबार ना रहनुमा होने दे नाते कलीसिया दी अच्छी परवरिश करनी लाते हो। मैं मुस्लिमों का मेरे पराठे बहुत लाभ, वो भी आलू वाले। हाँ, तो वो क्या कहता है? एक्सरसाइज करवाओ। सो दूसरी जिम्मेदारी जो एक खादम की होनी चाहिए कि वो कलीसिया के ईमान की हिफाजत के लिए खड़ा हो। क्या हो? कलीसिया की ईमान की हिफाजत के लिए, यानी कलीसिया नू रूहानी लुटेरिया तो की करे? बचावे। बिदता बहुत सारियां ने ना। मैंने जब बिदात के ऊपर कल्ट्स एंड हेरेसीज के ऊपर कलाम को चर्च में सुनाना शुरू किया तो मेरे गिरजे दे ने कहा, पादरी साहब थाने कचहरियां च असीं तुहाडे पीछे नहीं आ सकते, क्योंकि मैंने कल्ट्स और हेरेसीज यानी बिदात के ऊपर कलाम सुना तो साड़ी कॉलोनी च बेशुमार बिदता ने और सारियां पैसे वालियां। मैं क्या खैर है कोई गल नहीं, लेकिन फिर मैं मुड़ भी गया थोड़ी देर बाद, लेकिन काम मैं पूरा रखा और मैंने पूरी दलेरी के साथ सुनाया भी। लेकिन वक्त आएगा कि हम इनको एलेबोरेट करेंगे। क्या लिखा है? ईमान की हिफाजत करे। एक खादम की जिम्मेदारी है कलीसिया को रूहानी लुटेरों से बचाए। ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਭੈਣ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰ, ਭਰਾ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। कलीसिया के ईमान की हिफाजत के लिए वो खड़ा हो। बुजुर्ग सुलेमान को पूछे तेनू की चाहिए, तो उसने एक तारीखी जुमला कहा। उसने कहा मुझे आकिल और बालिग दिल चाहिए ताकि वो लोग जो तूने मुझे दिए हैं मैं उनका इंसाफ बेहतर तौर पर कर सकूं। उन्हें की मंगया? आकिल ते बालिग दिल। आकल जवान ते बालिग समझदार। आई कहने बालिग हो गया, जवान हो गया, आकल हो गया, अकल वाला हो गया, समझदार हो गया। तो उन्हें की मंगया? उन्हें क्या मैं आकल और बालिग दिल मांगता हूं। कहने हिकमत मंगी सी, इधर पीछे राज हिकमत ही पोशीदा, लेकिन जेन्युइन लफ्ज ये है कि उसने आकिल और बालिग दिल मांगा और कहा कि जो लोग तूने मुझे दिए हैं मैं उनका बेहतर तौर पर इंसाफ करूं। और कलीसिया का पासबान होने के नाते जिम्मेदारी हमारी ये है कि हम खुदावंद से आकिल और बालिग दिल मांगे ताकि हम कलीसिया के लिए बेहतर इंसाफ कर सकें। हालेलुया। काश 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 पाकिस्तान के खादम सुलेमान वांग दुआ करन तो मेरा ख्याल है कि वो देने की कुदरत है। और फिर दाऊद की तरह, दाऊद नू पूछा ओए तू निका जा जंग लड़ लेगा? इन्नी कि तेरी सेहत है, वो जंग का समान पा के तेरे को हिलिया नहीं जाता, आ गया तू मारन जाती जोलियत नू। लेकिन दाऊद गॉड मेड था
उसने कहा, ऐ जाति चोलिया, तू पर्ची और भाला लिए हुए मेरे पास आता है, लेकिन मैं जिंदा खुदा के नाम से जिसकी तूने फजीयत की है तेरी तरफ आता हूँ। और बाइबल मुकद्दस फरमाती है उसने गुलेल से छोटा पत्थर मारा और वो बड़ा भरकम जाति जुर्रियत जमीन बोस हो गया। उसके पीछे वजह क्या थी? उसके पीछे वजह ये थी कि दाऊद गॉड मेड था। हालेलुया। ते सानू की देर का बनना है? दाऊद वर्गा खादम बनना है। ते यीशु मसीह ते साडा वैसे ही नमूना सी। उसने कहा मैं 99 को छोड़कर एक भटकी हुई के पीछे जाता हूँ। हालेलुया हालेलुया। ते असी कहने आ ओ चल एक ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਾਏ 99 ਤੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਉਹ ਛੱਡ ਪਰੇ ਇਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇ ਗਿਰਜੇ ਚ ਰੌਲੇ ਪੈਣਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਬਾਕੀ ਤੇ 10 ਬਚਣਗੇ ਨਾ। लेकिन मसीही रवैया ऐसा नहीं था। मसीह कहने मैंने 99 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉਸ गुनहगार के पीछे जाना है। एक खादम की जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि वो उसके पीछे जाए। और आखिरी बात करके मैं इसको क्लोज करूंगा। इसी तीतस के खत के अंदर कि एक खादम की हकीकी पहचान जो है वो इस बात से होगी कि कलीसियाई पासबान ईमान में वफादार और ईमानतदार हो की होवे। ईमान से वफादार थे अमानतदार होवे और बद ध्यानता नहीं होना चाहिए मेरे वर्गा। हाँ बाइबल कहती है की होना चाहिए? ईमानदार होना चाहिए। कलाम सुनान से मेहनत करने वाला होना चाहिए। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੌਂਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਪਾਤੀ ਕਿ ਚੱਲ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਆ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗਲਤ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਇੰਜ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਹੀ ਉਤਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਖੁਦਾ ਐਡਾ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। हालेलुया। क्या हो? कलीसियाई पासबान ईमान में वफादार और ईमानतदार हो। मसीही तर्ज जिंदगी में तजदीद आनी चाहिए। एक पासबान की जिंदगी नूं देखो ते ओदी जिंदगी दे विच की आना चाहिए? नयापन आना चाहिए। ये नहीं कि वो अज भी बुसिया ही ते वो कल भी बुसिया ही, वो अज भी इत्थे ही है ते वो कल भी इत्थे ही। उसे मसीही ईमान के अंदर बढ़ना चाहिए। इससे पता चलेगा कि आप खुदा के बरगजीदा चूजन पीपल है, अलहदा किए हुए, मसाशुदा है, अनॉइंटेड वन है। सो ये बात बड़ी जरूरी है। मसीही तर्ज जिंदगी और चाल चलन में दिन ब दिन बेहतरी आनी चाहिए। अगर मसीही तर्ज जिंदगी नहीं बदलता, मैं पादरी हूं और मेरी जिंदगी दे काम करन दा स्टाइल ही नहीं बदलन दिया तो फिर समझो मैं गॉड मेड नहीं हाँ। मैं पीपल मेड हो सकना, मैं जेड़ा सेल्फ मेड हो सकना, लेकिन मैं गॉड मेड नहीं हो सकता। सो एक ईमानदार की जिंदगी में दिन ब दिन बेहतरी आनी चाहिए। और आखिरी बात सिर्फ स्टेटमेंट के तौर पे अगर पहचानना है ना कि कोई खादम कैसा है तो एक ही फॉर्मूला किसी बुजुर्ग ने बड़ा निचोड़ के कढ़िया। उन्हें आख्या अगर तुसी ये पता करना ना कि यह खादम चंगा है या नहीं तो फिर एक ही फॉर्मूला, एक तो बाइबली पैमाना है, एक उस खादम की जिंदगी का निचोड़ है। उन्हें पता नहीं किन्ने सालों में एक जुमले च बयान करके आख्या, उन्हें आख्या असल बाइबली खादम वही है जेड़ा स्टेज ते भी उंजदा है ते जेड़ा थल्ले भी उंजदा है। हालेलुया। साडा ये बहुत रौला है डुअलिज्म। भेड़ के रूप में भेड़िया, बहरूपिया यानी दो फेस। जरा पुल पड़ते असी पादरी होंगे, बिशप होंगे, रेवरेंड होंगे, फादर होंगे, पता नहीं की होंगे ते थल्ले जाके असी कुछ भी नहीं होंगे। हाँ ये सिर्फ इत्थे आस्ते असी रखा कि असी पादरी हाँ, लेकिन थल्ले जाके असी पादरी नहीं होंगे। लेकिन हकीकी बाइबली खादम ये है कि जो स्टेज के ऊपर भी वैसा है और नीचे भी वैसा है। सो खुदावंद हम सबों को ये फजल अता करे कि हम उसकी पाक बारगाह में सबके सब जितने भी बैठे, चुटियां चुटन वाले तक
सब खादिम, सब ईमानदार हैं और हम सब की जिंदगियों में दिन ब दिन तजदीद होनी चाहिए, बेहतरी होनी चाहिए। सो खुदावंद आज के कलाम के सबब से हमारी सम्मतों को, हमारी डायरेक्शंस को, हमारे रवैयों को, हमारे चाल चलन को दुरुस्त करें और हमें हकीकी तौर पर अच्छा मसीही बनने का फजल अता करें। खुदावंद आप सबों को इस कलाम के वसीले से